Hello dear students, welcome all of you to CATG online classes. Students, this is lecture 3 of biology for class 11th. Students, if you remember, in previous lectures we have studied different basic things regarding chapters and the different characteristic features of living organism. Students, today we are moving to next topic of the chapter, and next topic of today is diversity in the living world. Topic is diversity in the living world. Children, living world means living organism, जिसके बारे में हम लोग प्रीवियस क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं. एंड डाइवर्सिटी इज ऑल्सो नोन एज बायोडाइवर्सिटी. राइट. अगर आप इस अर्थ पे डिफरेंट प्लेसेस पे विजिट करें तो आप देखेंगे कि सब जगह एक ही जैसे प्लांट्स या एनिमल्स नहीं पाए जाते, बल्कि डिफरेंट प्लेसेस पे वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स आपको दिखेगा, जो शेप में, साइज में, नेचर में डिफरेंट होगा. तो वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स इस प्लेनेट पे पाए जाते हैं, और यही जो वेराइटी है यही रिप्रेजेंट करता है डाइवर्सिटी और बायोडाइवर्सिटी. सो बायो मीन्स लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्सिटी मीन्स वेराइटी. सो व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी? इट इज वेराइटी of living organism found on earth. Children, लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था organism means not only plants or not only animals but both, all kind of living organism. So what is diversity or biodiversity? It represents variety of living organism, that is plants and animals found on this earth. Right. अब एक कैलकुलेशन है, एक डेटा है जो बताता है कितने प्लांट्स और एनिमल्स की वैरायटी पाई जाती है. चिल्ड्रन, ऑन दिस अर्थ देयर आर अबाउट 1.7 to 1.8 मिलियन स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. राइट. आउट ऑफ विच about 125 million species are animals, और रेस्ट जो बचते हैं वो प्लांट हैं, प्लांट्स स्पीशीज, और 1.2 मिलियन स्पीशीज ऑफ एनिमल्स में भी आप देखेंगे 70% इंसेक्ट्स होते हैं. मीन्स अबाउट 9.5 to 10 lakhs species of animals पाए जाते हैं जो इंसेक्ट होते हैं. So what is biodiversity? Biodiversity is variety of living organism found on this earth. And what is total number of different species found on this earth? Total number is 1.7 to 1.8 million. Children, you know 1 million is equal to 10 lakhs. So 1.7 around 17 lakhs, 1.8 18 lakhs. In which 1.25 millions, लगभग 12.5 लाख स्पीशीज ऑफ एनिमल्स पाए जाते हैं, एंड रेस्ट होते हैं प्लांट में. सो पॉज द सिस्टम एंड नोट डाउन द डेटा. चिल्ड्रन, आई एम क्लीनिंग द बोर्ड. अबाउट बायोडाइवर्सिटी यू विल आल्सो स्टडी इन क्लास 12th in ecology unit. Next heading, students, that we are going to study is systematics. Children, let us understand systematic का मतलब क्या है. Systematic word has been derived from Latin word. That Latin word is systema. That means systematic arrangement
of organism. Organism means both plants and animals. So systematic has been derived from Latin word systema, that means systematic arrangement of living organism. Now there is a biologist, this I am telling you for your competition point of view, ये NCERT में नहीं दिया है बच्चों, एक्स्ट्रा पॉइंट में बता रहा हूं आपको. सिम्पसन 1961 सिस्टमैटिक्स के बारे में सबसे पहले सिम्पसन ने इस वर्ड को डिफाइन किया था और इसको बताया कि क्या है सिस्टमैटिक्स. सो अकॉर्डिंग टू सिम्पसन, सिस्टमैटिक इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी दैट कंसर्न विथ स्टडी ऑफ डाइवर्सिटी ऑफ organism, their features and relationship with each other, and this relationship is based on evolutionary feature. Children, this is very important for your competition. Questions आ चुके हैं previous year में. So, according to Simpson, who was the first to define systematics? The first was Simpson, 1961. Even question आता है कि who has given the term systematics? Then also you take Simpson. Simpson ने बोला कि systematics क्या है? It is study of diversity of organism, features and relationship with each other. और ये relationship basically क्या है? ये basically है evolutionary relationship of the organism की कैसे वो evolve हुए, कैसे वो descend हुए, इसके बारे में पढ़ते. तो let us revise systematics. What is systematics? It is a branch of biology that concern with the study of diversity of organism, their features and relationship, that is evolutionary relationship, children. And the word has been derived from Latin word systema, that means systematic arrangement of organism. So please note down the things. Now we are moving to next point in the same heading. Children, later on systematics was more developed, it got enlarged and consists of many things more. बाद में systematics जो ब्रांच है वो enlarge हुआ और इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड हुई. Let us see the things. बाद में इसमें आया आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. बच्चों इसमें तीन चीजों को इंक्लूड किया गया, आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन. अब वन बाय वन करके हम लोग इसको स्टडी करते हैं. व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन, व्हाट इज नॉमेनक्लेचर, नॉमेनक्लेचर क्या है उसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे. देन क्लासिफिकेशन. तो आइडेंटिफिकेशन मींस टू आइडेंटिफाई एन ऑर्गेनिज्म. स्टूडेंट्स एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कोई भी स्कूल है, कॉलेज है, कोई कंपनी है, आपने देखा होगा वहां पे पर्सन्स को आइडेंटिफाई करने के लिए एक कार्ड दिया जाता है जिसको आप क्या बोलते हैं, आई कार्ड. दैट इज आइडेंटिटी कार्ड. मींस दैट कार्ड इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन. तो सिमिलरली अगर आप किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसी पर्टिकुलर फीचर्स के बेसिस पे पहचानते हैं, उसको रिकॉग्नाइज करते हैं, तो उसको बोलेंगे identification. So what is identification? It is just to identify or recognize an organism on the basis of a particular feature. जैसे एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं अमीबा का. तो अगर मैं ये बोलता हूं कि pseudopodia, presence of pseudopodia is feature of which organism? Quickly you will answer that, sir, amoeba. तो आपने कैसे आंसर दिया अमीबा? Because presence of pseudopodia is a very important feature
ऑफ अमीबा। सिमिलरली अगर ये क्वेश्चन होता है प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, नेम द ग्रुप ऑफ एनिमल्स विच कंसिस्ट ऑफ मेमोरी ग्लैंड्स, सो वी विल आंसर दैट क्लास मैमेलिया, जिसमें ह्यूमन बीइंग भी आते हैं। तो कैसे आपने इसको रिकॉग्नाइज किया या आइडेंटिफाई किया? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ specific feature, that is mammary gland. So what we call it? We call it identification. Now students, please note the thing, and we are moving to next heading, nomenclature. इसको हम लोग काफी डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो एक ये प्रॉपर हेडिंग हम लोग बना लेंगे इसको। नेक्स्ट इज nomenclature. स्टूडेंट्स, नॉमेनक्लेचर क्या है पहले इसको समझते हैं। नॉमेनक्लेचर मीन्स इट इज अ प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नेम, पहले सिंपल वर्ड में समझते हैं, टू एन ऑर्गेनिज्म। स्टूडेंट्स, किसी का जन्म होता है, उसका अपना एक नाम दिया जाता है उसको, तो ये प्रोसेस क्या होता है? नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर मीन जस्ट टू गिव अ नेम। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म को एक साइंटिफिक नेम देते हैं। जनरल नेम अलग अलग ऑर्गेनिज्म का अलग अलग हो सकता है अकॉर्डिंग टू प्लेस, स्टेट, कंट्री, बट उसका साइंटिफिक नेम पूरे वर्ल्ड में एक ही होगा। तो नॉमेनक्लेचर मींस प्रोवाइडिंग नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। यहां पे नेम का मतलब सिंपल नेम नहीं होगा, दैट इज साइंटिफिक नेम, साइंटिफिक नेम टू एनी ऑर्गेनिज्म, राइट। अब नॉमेनक्लेचर की शुरुआत कैसे हुई, कहां से आया, वो सब हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट्स, साइंटिफिक नेम देने के लिए बहुत सारे प्रिंसिपल, बहुत सारे कॉन्सेप्ट दिए गए, बट आउट ऑफ दोज प्रिंसिपल्स सबसे ज्यादा जो एक्सेप्टेड है पूरे वर्ल्ड में, जिसके अकॉर्डिंग आज भी साइंटिफिक नेम दिया जाता है, वो है बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, ये मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम है, मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम of nomenclature, right? And it has been given by Carolus Linnaeus, a Swedish naturalist, or you can say biologist. स्वीडिश नेचुरलिस्ट और बायोलॉजिस्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी कभी फेमस बायोलॉजिस्ट या साइंटिस्ट का कंट्री का नाम भी पूछ देता है, जैसा कि प्रीवियस ईयर के नीट एग्जाम में पूछा हुआ था। तो नॉमेनक्लेचर अभी तक हम लोगों ने क्या समझा? नॉमेनक्लेचर क्या है? इट इज अ सिस्टम और प्रोसेस ऑफ प्रोवाइडिंग नेम टू एन ऑर्गेनिज्म। और यहां पे नेम का मतलब क्या होगा? साइंटिफिक नेम, राइट। और अब क्वेश्चन आता है कि नॉमेनक्लेचर का मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम क्या है? यू विल से दैट मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम। देन इट इज मोस्ट एक्सेप्टेड हो गया। एंड हु हैड गिवन दिस कॉन्सेप्ट या दिस सिस्टम? तो इट हैज बीन गिवन बाय कैरोलस लिनियस। किस कंट्री से बिलोंग करते थे? स्वीडिश नेचुरलिस्ट। So please pause the system and note down the things. Then we are moving to next heading or next part of the nomenclature. So what we have studied, that most accepted system is binomial nomenclature. Children, as the name suggests, bi means two and nomenclature means name, name देने का process. तो ये नॉमेनक्लेचर सिस्टम क्या बोलता है? किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेम है वो टू वर्ड से होगा। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स एंड दीज टू वर्ड्स कंसिस्ट ऑफ
genus and species. Genus is also called sometimes genera. It is also called generic epithet. Generic epithet. Species is also called a specific epithet. सब नेम भी आपको जानने चाहिए बिकॉज क्वेश्चंस इससे आ जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम में. तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम अभी आपने पढ़ा. इट हैज बीन गिवन बाय कैरोलस लिनियस. ये सिस्टम क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम साइंटिफिक नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और बायोलॉजिकल नेम ऑफ एन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स. फर्स्ट वर्ड किसको रिप्रेजेंट करेगा? जीनस को. इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनरा. इट इज ऑल्सो कॉल्ड जेनेरिक एपिथेट. And second word represent species, or it is also called a specific epithet. Please note the points and then we are moving. Students, binomial nomenclature के हिसाब से जब भी nomenclature करते हैं किसी भी organism का, तो उसके लिए कुछ rules होते हैं. वो rules हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं और इससे भी क्वेश्चंस आते हैं. 2019 नीट एग्जाम में भी क्वेश्चन आया हुआ था, वो हम आपको भी बताते हैं. तो क्या क्या इसके लिए क्या रूल्स हैं? रूल्स क्या है? रूल्स है कि जो बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम जिसको बोलते हैं, इट इज रिटन इन लैटिन. लैटिन वर्ड में लिखा जाता है और ये इटैलिक्स होता है. स्टूडेंट्स, आपने देखा होगा बुक में जहां भी बायोलॉजिकल नेम होता है वो इटैलिक्स लिखा रहता है. इटैलिक्स लिखने के पीछे लॉजिक है कि वो बाकी कॉमन नेम से डिफरेंशिएट हो जाए. तो दिस इज द फर्स्ट रूल. व्हाट इज सेकेंड रूल? इट्स अ फर्स्ट वर्ड रिप्रेजेंट जीनस, और इसका दूसरा नाम मैंने बताया, और जेनरिक एपिथेट. तीसरा नाम बताया मैंने जेनरा. एंड इट्स सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट. नेक्स्ट, व्हेन हैंड रिटन, अगर इसको हाथ से लिखते हैं, मैनुअली लिख रहे हैं, तो उसमें कुछ लोगों की राइटिंग हैंड इटैलिक्स बिल्कुल होता है. तो कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? सो व्हेन हैंड रिटन बायोलॉजिकल नेम मस्ट बी अंडरलाइन. अभी एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको उसको समझाता हूं. जब भी आप बायोलॉजिकल नेम लिखेंगे हैंड रिटन, तो दैट मस्ट बी अंडरलाइन. इसको अलग अलग अंडरलाइन करेंगे. जीनस अलग अंडरलाइन होगा, स्पीशीज अलग अंडरलाइन होगा. राइट चिल्ड्रन? एंड फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस इज रिटन इन कैपिटल लेटर में लिखते हैं. एंड फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज इज रिटन इन स्मॉल चिल्ड्रन. राइट? तो ये इसकी कुछ रूल्स होते हैं. एक और रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो अभी हम लोग लिखते हैं इसको. तो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम का रूल क्या है? साइंटिफिक नेम जनरली लैटिन वर्ड में लिखा जाएगा और ये इटैलिक्स होता है. फर्स्ट वर्ड क्या रिप्रेजेंट करेगा? जीनस और जेनेरिक एपिथेट. सेकेंड वर्ड रिप्रेजेंट स्पीशीज और स्पेसिफिक एपिथेट. एंड जब इसको हैंड रिटन हाथ से लिखते हैं मैनुअली, देन इट मस्ट बी अंडरलाइन. और फर्स्ट लेटर जीनस, जिसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा, फर्स्ट वर्ड जीनस है, इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और सेकेंड वर्ड जो है वो स्पीशीज है, उसका फर्स्ट लेटर स्मॉल में लिखा जाता है. और जीनस स्पीशीज दोनों को अलग अलग अंडरलाइन करते हैं, एक साथ अंडरलाइन नहीं करते हैं, नहीं तो वो गलत माना जाता है.
तो चलिए पॉज द सिस्टम एंड नोट डाउन द थिंग्स। इसमें एक और बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो अभी हम लोग लिखने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं, अभी रिसेंटली पिछले साल नीट एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ था। इसमें नेक्स्ट रूल है, स्टूडेंट्स जब भी बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं, लाइक मैंगो का अगर हम लोग बायोलॉजिकल नेम लिखें, देन इसका पहला जो वर्ड है इट इज मैंजीफेरा, देन इंडिका। देखिए इसका जो पहला जो वर्ड है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, जीनस को और जेनरा और जेनिक एपिथेट, और इंडिका रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, स्पीशीज को। और इसका आप देखिए हमने हाथ से इसको लिखा हैंड रिटन, तो जीनस अलग अंडरलाइन होगा, स्पीशीज अलग अंडरलाइन होगा। जीनस का पहला लेटर देखिए कैपिटल है, स्पीशीज का पहला लेटर स्मॉल है। और इसमें जब लास्ट में कुछ एब्रीविएटेड फॉर्म रहता है लाइक LINN लिन और एल, तो इसका क्या मतलब है। यह क्वेश्चन 2019 नीट एग्जाम में पूछा हुआ है बच्चों। वहां पे क्वेश्चंस में दिया हुआ था, ऐसे ये दिया हुआ था नेम और लास्ट में लिखा हुआ था लिन और कैपिटल एल, और वहां पूछा हुआ था बताइए व्हाट डू यू मीन बाय दिस, ये क्या है, लिन किसको रिप्रेजेंट करता है और एल किसको रिप्रेजेंट करता है। तो अभी आपने डिस्कस किया कि बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम हैज बीन गिवन बाय कैरोलस लीनियस। तो लिन और एल किसको रिप्रेजेंट करता है, इट रिप्रेजेंट Linnaeus, who is discoverer of this system of nomenclature. स्टूडेंट्स एक मैं बहुत इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूं जो बहुत कम लोगों को 1% या 0.5% लोगों को पता होता है। कैरोलस लीनियस अभी आपने पढ़ा कि he had given binomial nomenclature system। इस सिस्टम को देने के पहले कैरोलस लीनियस का जो नाम था वो था कार्ल वॉन लिने, ये उनका नाम था, पूरा नाम था कार्ल वॉन लिने। और फिर जब ये सिस्टम उन्होंने प्रपोज कर दिया तो उन्होंने कहा भाई देखिए मैं अपना नाम कन्वर्ट कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं, और मेरा नाम भी 2 वर्ड से होगा, क्योंकि बाइनॉमियल में उन्होंने लिखा था 2 वर्ड से होगा साइंटिफिक नेम, तो उन्होंने अपना नाम ही चेंज कर लिया। इसलिए आप इनके नाम में देखते हैं कैरोलस एंड लीनियस। सो प्लीज पॉज द सिस्टम, चलें and note down the important things। तो स्टूडेंट्स अभी हम लोगों ने पढ़ा what is binomial nomenclature system और binomial system और उसके क्या क्या डिफरेंट रूल्स हैं। उसमें एक क्वेश्चन भी आया हुआ था नीट एग्जाम में, मैंने बताया आपको, और इसको किसने प्रपोज किया ये भी हम लोगों ने डिस्कस किया। एक बार रिकॉल कर लीजिए, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम और बाइनॉमेनक्लेचर सिस्टम हैज बीन गिवन बाय कैरोलस लीनियस। अब हम लोग कुछ एग्जांपल्स लिखने जा रहे हैं, नेम, साइंटिफिक नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म जो होंगे अकॉर्डिंग टू बाइनॉमियल और बाइनॉमेनक्लेचर सिस्टम। तो आइए नेम लिखते हैं हम लोग, किसके अकॉर्डिंग हम लोग नेम लिखेंगे, बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम, और आप इसको बाइनॉमेनक्लेचर सिस्टम भी बोल सकते हैं। सो बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम और बाइनॉमेनक्लेचर सिस्टम। देखिए कुछ ऑर्गेनिज्म के नेम हैं, हम लोग यहां पे लिखेंगे पहले कॉमन नेम, एंड देन हम लोग यहां पे लिखेंगे बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम। बायोलॉजिकल नेम और साइंटिफिक नेम। मैंगो का तो अभी मैंने बताया आपको, मैंजीफेरा इंडिका। अभी देखिए सबसे पहले लिखते हैं ह्यूमन का, ह्यूमन बीइंग। स्टूडेंट्स ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम होता है होमो सैपियंस। नाउ रिकॉल करिए, पहला नाम किसको इंडिकेट कर रहा है, जीनस को, और दूसरा नाम किसको इंडिकेट कर रहा है, स्पीशीज को। इसका पहला लेटर देखिए कैपिटल है,
इसका पहला लेटर स्मॉल है और दोनों अलग अलग अंडरलाइन है। तो कोई भी ह्यूमन बीइंग किसी भी कंट्री का हो, उसका अपना कॉमन नेम, पर्सनल नेम अलग अलग हो सकता है, बट बायोलॉजिकली हम सब एक हैं, दैट इज होमो सैपियंस। नेक्स्ट आई एम टेकिंग एग्जाम्पल, वेरी कॉमन एग्जाम्पल, डॉग। Dog scientifically called Canis familiaris. Canis familiaris स्टूडेंट्स। अभी देखिए डॉग क्या है, एक बहुत ही कॉमन पेट एनिमल है जो घरों में डोमेस्टिकेट किया जाता है, राइट। आप में से कुछ लोगों के घर में डॉग एज ए डोमेस्टिकेट और पेट एनिमल हो सकता है, आपने उसका अलग अलग कॉमन नेम रखा होगा, बट बीइंग बायोलॉजी स्टूडेंट अब आप उसको बुलाएंगे कैनिस फेमिलियारिस। सो व्हाट इज साइंटिफिक नेम ऑफ डॉग? कैनिस फेमिलियारिस। देन कैट, इट इज आल्सो अ पेट एनिमल इन सम हाउसेस, सो कैट फेलिस डोमेस्टिका, फेलिस डोमेस्टिका। देन हाउस फ्लाई, हाउस फ्लाई साइंटिफिक नेम मस्का डोमेस्टिका। जब भी आप बायोलॉजिकल नेम लिख रहे हैं ये ध्यान रखिए, पहला वर्ड जो है वो जीनस है, इसलिए इसका पहला लेटर कैपिटल होगा, और स्पीशीज लिख रहे हैं तो स्मॉल होगा। आफ्टर दैट टेक सम एग्जांपल ऑफ प्लांट लाइक तुलसी प्लांट, इट इज अ वेरी कॉमन प्लांट, it is scientifically called Ocimum sanctum. Ocimum sanctum. So student, human being scientifically Homo sapiens, and dog scientifically Canis familiaris, cat Felis domestica, housefly Musca domestica, one other species is Musca novelo, tulsi plant Ocimum sanctum. So pause your system and note down it. एक और बहुत ही कॉमन प्लांट है जो हम लोग यूज करते हैं घरों में, दैट इज रिक्वायरमेंट वीट। वीट साइंटिफिकली कॉल्ड ट्रिटिकम एस्टिवम, शुड बी अंडरलाइन। एक और भी कॉमन प्लांट है नीम का प्लांट, आपने देखा होगा, इट इज एजा डायरेक्टा इंडिका। तो बहुत सारे कॉमन प्लांट है। इसी तरह मैंगो का अभी आपने लिखा मैंजीफेरा इंडिका। तो डिफरेंट प्लांट्स और एनिमल्स के डिफरेंट बायोलॉजिकल नेम होते हैं, और वो सब अकॉर्डिंग टू बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम के रूल के हिसाब से होंगे चिल्ड्रन। So please note down. चलें, हम लोग बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम पढ़ा हम लोगों ने, और जस्ट यू रिकॉल सिस्टमैटिक्स में तीन चीजें क्या थी? पहला आइडेंटिफिकेशन, दूसरा नॉमेनक्लेचर। नॉमेनक्लेचर में आपने पढ़ा बहुत मोस्ट एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर इज बाइनॉमियल नॉमेनक्लेचर सिस्टम गिवन बाय कैरोलस लिनियस, जिनके बारे में मैंने बताया कि उनका नाम कार्ल वॉन लिने था, पर सिस्टम देने के बाद उन्होंने अपना नाम कैरोलस लिनियस कर लिया। उसमें तीसरी चीज सिस्टमैटिक्स में थी क्लासिफिकेशन। सो नाउ गिव हेडिंग क्लासिफिकेशन। स्टूडेंट्स, क्लासिफिकेशन को बायोलॉजिकली समझाने से पहले एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं। क्लासीफाई एक कॉमन वर्ड है, आजकल आप यूज करते होंगे क्लासीफाई। सपोज 500 पीपल आपके सामने हैं और आपको उनको क्लासीफाई करना है, बोलते हैं उनको क्लासीफाई कर दीजिए, तो आप किस बेसिस पे क्लासीफाई करेंगे? आप कुछ फीचर्स लेंगे, कुछ पॉइंट्स लेंगे जिसके बेसिस पे आप क्लासीफाई करेंगे। लाइक आप बोलेंगे ऑन द बेसिस ऑफ हाइट, हाइट के बेसिस पे आप कर सकते हैं।
कलर, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट, ये डिफरेंट क्राइटेरिया लेंगे आप, जिसके बेसिस पे आप उनको अलग अलग ग्रुप में डिवाइड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ यूनिफॉर्म, डिफरेंट बेसिस आप लेंगे, राइट। तो ऑन द बेसिस ऑफ एजुकेशन अलग अलग क्राइटेरिया आप लेंगे। तो सिमिलरली क्या करते हैं, इतने सारे ऑर्गेनिज्म में, अभी मैंने बताया 17 से 18 लाख स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एनिमल पाए जाते हैं, तो आप उन सभी को अलग अलग याद नहीं कर सकते। तो आप उनको क्या करेंगे, डिफरेंट ग्रुप या कैटेगरी में डिवाइड कर देंगे ऑन द बेसिस ऑफ फीचर्स। कौन से फीचर्स, जो आप देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, मींस ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेबल फीचर्स यू कैन कैटेगराइज देम इनटू डिफरेंट ग्रुप और कैटेगरी। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलेंगे, क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन का डेफिनेशन कैसे हम लोगों ने बाहर निकाला, व्हाट इज क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन is a process of dividing organism means plant or animals, into different group or categories on the basis of their observable features. So what is classification? चलें, ये देखिए डेफिनेशन निकल गया जो हम लोग डिस्कस किया। इट इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग ऑर्गेनिज्म into different groups or categories on the basis of their observable features। और कैरोलस लिनियस को फादर ऑफ क्लासिफिकेशन भी बोलते हैं। He is known as father of classification। So students, आपने सिस्टमैटिक्स में क्या पढ़ा? सिस्टमैटिक्स इज अ ब्रांच जिसमें आप स्टडी करते हैं वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके फीचर्स एंड देयर रिलेशनशिप। दैट रिलेशनशिप इज बेस्ड ऑन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। सिस्टमैटिक्स लेटर ऑन enlarged to include identification, nomenclature and classification। ये चीज आपने समझा एंड आई होप कि आप समझ गए होंगे और इसको तैयार कर लेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग मिलेंगे स्टूडेंट्स। थैंक यू।